point of view, not only for the boards exam but for the NEET and JEE. Okay, so let us start studying this chapter. Okay, who is, so I'm saying here that we have the two elements. This is another type of problem that we are going to face, and this is, we are going to have P and Q are the two elements. Okay, form two compounds. It means when a P and Q react together, they form two compounds. Like we have, there are so many other compounds also that generally forms, when they combine together, they may form different compounds. For example, like N, nitrogen and oxygen when react, it generally form N2O. It may also form N2O5. It may also form NO3. Okay, so it can form different compounds. In the similar way, they are the two elements P and Q. When they combine together, okay, they form a compound that is P2Q3. Another compound is PQ2. Okay, and you know that here that when 0.5 mole of this substance, okay, this compound is weighing 15.9 gram, means 0.15 mole of P2Q3, actually it weighs 15.9 grams. Okay, and in the similar way, 0.5 mole of PQ2 is weighing 9.3 grams. Okay, so dear students, you need to find out the atomic weight of P and Q. How will you deal with this, with such type of problems? How will you deal? So हमारे पास दो एलिमेंट है, सॉरी, P and Q आर द टू एलिमेंट्स जो हम लोग को गिवन है, और वो जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं P2Q3 और PQ2, मतलब ये दो कंपाउंड बनाते हैं. ठीक है, देयर आर डिफरेंट, हमेशा अलग अलग तरह के कंपाउंड हमें देखने को मिलते हैं. ये दो एलिमेंट रिएक्ट करके बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं. जैसे तुमने देखा भी होगा कि कार्बन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ तो CH4 बनाता है, C2S6 बनाता है, C6S6 बनाता है. तो दो एलिमेंट रिएक्ट करके वो अलग अलग तरह के कंपाउंड बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. तो एक ये कंपाउंड बनाता है और एक ये कंपाउंड बनाता है. तो जब 0.5 मोल हम इसका लेते हैं तो हमें वेट मिलता है कितना, ये. ठीक है, और जब हम लोग PQ2 का वेट लेते हैं तो हमें मतलब 0.5 मोल्स इसके लेते हैं तो हमें वेट मिलता है इतना. तो व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ दिस वन? एटॉमिक वेट बताइए, P और Q का एटॉमिक वेट कितना होगा. और ये सिंपल मोल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड प्रॉब्लम है, डायरेक्ट बेस्ड प्रॉब्लम है. यू हैव टू सॉल्व दिस वन. हाउ कैन यू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम? टेल मी. सो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम. वी हैव द फॉर्मूला. हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज number of mole is equals to given weight of the compound. Okay, given weight upon its molecular weight. Okay, so for the we are just having this one, the number of moles for P and Q, P2Q3. We are just finding the actually the molecular weight of P2Q3. We are just going to find the molecular weight of P2Q3. So it is being given that it is going to have 0.5 mole, and the given weight, the given weight for this one is 15.9. Okay, so the molecular weight of this one will be, tell me what would be the molecular weight. So molecular weight would be 15.9 up 0.15. Tell me what would be the molecular weight. So we will get here, हम लोग को यहाँ पर मिलेगा, that we will get 106 is the molecular weight of P2Q3. Okay, similarly please find out the weight of PQ2. Please find out the weight of PQ2. So 62. Okay, similarly you will find out, you will given that that is 9.3, and this is the molecular weight. Okay, this the molecular weight would be equals to 9.3 upon 0.15. Okay, and that will be equal into 62. Are you sure? Okay, the molecular weight is 62. Okay, now what you need to do here, that you have the this 62 is the molecular weight for PQ2, and this 106 is the molecular weight of P2Q3. Okay, now
it is not being asked in the question that what is the molecular weight of these compounds. What is being asked? It is being asked that you have to find out the actual atomic weight of P and Q respectively. Okay, so what you need to do is you have to simply do one problem, simple solve it, that let that P means if something, that the molecular weight of P is actually X, okay, and that the atomic weight of Q is Y. Okay, so this you can write here, when you are writing here P2Q3, so you can write here 2x, 2 times of x, what would be the molecular weight of this one, okay, atomic weight of this one. So if I am considering this one as x, the molecular weight of this, atomic weight of this P is x, so in this will be equivalent to 2x plus 3y will be equals to 106. Got it, or still having some doubt regarding to this statement? Aram, do you understand? Okay, in the similar way, you got the molecular weight of PQ2 is equals to 62. What would be the next equation? Tell me. What would be the next equation? Yes. 2y. Okay. Now this is a simple elimination method. You have studied mathematics. Solve this one. So what you will do? Find out the value of x and y. Solving this one, you will be able to find out that the x is equals to, by simple elimination method you can solve this problem, and that's very easy. So you can simply write here that you will get the value of x as 26 and the value of y would be 18. Got it? Okay. So let's move further in the next equation. Let's move to the next question. Okay, so in the previous classes we have discussed, let me revise this one also one more time so that you may understood and okay. So I have taught you that whenever we are just going to deal with the gases, okay, if we are dealing with the gases, then during that time you need to keep in mind, when whatever the gas we are taking, it is independent. Let it be hydrogen, nitrogen, carbon dioxide, sulfur dioxide, if I am talking about the gases. So if we take the 1 mole of gas, if I am taking 1 mole of gas, so it will occupy the same volume at standard temperature pressure or normal temperature pressure, that is STP or NTP. So if we keep the gas at normal temperature pressure and we take 1 mole of each gas, like carbon dioxide, okay, 1 mole 44 grams, carbon dioxide is going to have 44 grams, 1 mole of carbon dioxide is going to have 44 grams. In the similar way, if I took the sulfur dioxide, okay, if I took the oxygen gas, that is 32, if I took the nitrogen gas, that is 28 grams, 1 mole of every gas or any gas, it will be going to occupy the same volume, and that will be 22.4 liter. Got it? Or still having some doubt regarding to this statement? Got it? Means it is independent on the type of gas which you are taking. If you take any gas and it is in it is 1 mole, then it will be going to occupy the same volume. Got it? So 1 mole of any gas will occupy the same volume, and that is 22.4 liter or 2400 ml. Okay, like I have 1 mole hydrogen, that is 2 gram, 1 mole oxygen, that is 32 gram, 1 mole nitrogen, that is 28 gram. They all will be going to occupy the same volume, and that will be 22.4 liter at STP. And what is the value of standard temperature? What is the value of standard temperature? Standard temperature, that is 273 Kelvin or 0 degrees Celsius. Okay, and the pressure 1 atm is 1 atm pressure, 1 atmospheric pressure. Got it? So let's deal with some other problems also. Okay, first let's deal with this problem. Okay, now here we have a problem, 11.2 liter of a carbon dioxide, of a hydrocarbon, 11.2 liter of hydrocarbon on combustion. When we burn it, it gives 44.8 liter of carbon dioxide. Okay, when we have a hydrocarbon and when we burn it in the presence of oxygen, we are burning this one in the presence of oxygen. Okay, then you need to keep in mind here that when we are burning some, that is 11.2 liter of any hydrocarbon, and hydrocarbon can be in the form of CX and Y. Means hydrocarbon, what are the hydrocarbons? Hydrocarbons like CH4 is hydrocarbon, C2H6 is hydrocarbon, C2HA4 is hydrocarbon, okay, C2H2 is hydrocarbon. So this is hydrocarbon, means the compound of carbon and hydrogen only is called hydrocarbon. Got it? Got it?
So if we are having some compound like this one, CX and HY, whatever the value of X and Y we don't know here. Okay, if we are having this one 11.2 liter, okay, 11.2 liter, okay, okay, and if I am burning in sufficient supply of oxygen, and when a hydrocarbon is burned in sufficient supply of oxygen, we get only a simple product, that is carbon dioxide and water. Yes, tell me. अच्छा हिंदी में समझाओ, समझो। मैं बोल रहा हूँ कि जब भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं, हाइड्रोकार्बन जो होता है वो कार्बन और हाइड्रोजन की फॉर्म में होता है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हें समझना है कि जब भी हम लोग हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसका एक ही प्रोडक्ट बनता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। गॉट इट? जब भी हम इसको जलाएंगे, ठीक है। सो अच्छा, अब जब हम इसको जलाते हैं तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 444.8 लीटर हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, और 36 ग्राम हमको वाटर मिलता है। ये हमें लीटर में दे रखा है और ये हमें ग्राम्स में दे रखा है, ठीक है। इट इज द नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन। आपको हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला पता करना है, ओके। सो इस तरह के प्रॉब्लम को पहले हम लोग जरा, मैं जनरल इक्वेशंस आपके लिए डील करता हूँ और मुझे बताइएगा जरा। सपोज करो मैंने आपको एक दिया है मैंने फॉर्मूला, दैट इज C2H6 प्लस O2 प्लस CO2 प्लस वाटर, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। दूसरी मैं आपको दे रहा हूँ CH4 प्लस O2 विल गिव्स यू CO2 प्लस वाटर। दोनों इक्वेशन को बैलेंस करके दिखाइए क्या आंसर आएगा। हाँ, तो हम लोग को इसको बैलेंस करना है, तो चलिए बैलेंस करते हैं। So first of all, you see here there are the two carbons, so write here 2, okay. And there is hydrogen as how many hydrogens are there? There are 6 hydrogens, and there are only 2 hydrogens. So you have to multiply this by 3 so that it will become 6. Now count the total number of oxygen. How many oxygens are there? 4. And how many? 3. There are 7. So how can you make this 2 as 7? By multiplying it 7 by 2. 7 by 2. Okay, write it let it be written like this way. Okay, it is balanced now. 7 by 2. Okay, now it is balanced. Now this equation is balanced, and the lower one is also balanced. So how can you, if you don't know the value of this x and y, how can you predict, or what will if? Okay, just listen to. यहाँ पर यहाँ ये फोर, हाँ वो मुझे पता है, मैं सिखा रहा। हाँ बेटा, मैंने सिखा रखा है कि डिनोमिनेटर जो भी होता है उसको अच्छा नहीं लगता लिखा हुआ, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर होता है पूरी इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा 2, यहाँ पर 4 हो जाएगा 6। लेकिन अभी तुम इसको ऐसे ही बैलेंस कर दो, ठीक है। क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं, अगर मेरे पास कोई ऐसा जनरल इक्वेशन लिखी हुई है जिसमें हमारे पास ये मैं मान लेता हूँ x और ये मैं मान लेता हूँ y, तो इस x और y की वैल्यू हम लोग कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या नंबर आएगा, दैट वुड बी इक्वल टू x प्लस y बाई 4, ऑलवेज x प्लस y बाई 4 आएगा। यानी अगर हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन है जिसमें x और y हम लोग को गिवन है, ओके, तो अगर x और y हम लोग को कोई हाइड्रोकार्बन मतलब इस तरह की फॉर्म में गिवन है CX एंड HY, सो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी x प्लस y बाई 2. So what is the value of x? There is 2. Okay, sorry, y by 4 here, y by 4 plus this. What is the value here? Y is actually 6. Okay, so 6 when divided by 4 you will get 1.5. So 2 plus 1.5, actually it will give you 3.5, and that is equals to 7 by 2. Got it? Okay. In the similar way, what would be the value here? It is the same as x. Whatever the x we are getting here, we will going to have that one. And what would be the value of here? That will be y by 2. What will be the value of y here? That will be divided by 2. Okay, means if we have, okay, yeah, you can simply say that if we are having the value of x here 1, x is equals to 1, and y is equals to, actually we are having 4. Okay, so what would be the value of here? This will be x plus y by 4. Y by 4. So what is the value of x? X is 1 and plus y by 4. So what is the value of y? Y is actually 4. So 4 upon 4, that will you get 1. Okay. So you will get here 1. Okay. So here you can write, what you can write here, that is 1 plus 1, that is 2. And that is 2 being is written here. And the similar way, here it is x is 1. So you no need to write here 1.
Okay, and in the similar way, what is the value here? That is 4. So 4 divide, this is y by 2, actually this is y by 2. So what is the value of y? Y is actually 4, so you have to write here 2. Got it? So we have the general formula, this one. Okay, whenever we are going to have this, we will get this equation like this way. Got it? Cx plus hy will give you x plus y by 4. This is y by 4 actually. Okay, y by 4 plus x, and that will be y by 2. Got it? Let's move to the next problem. Let's move to the problem. Okay, let's move to the problem. अरे mic किसका on है? Okay, so now I'm saying here that we have this one, Cx plus 4y plus O2 will give you CO2 plus water. ये हम लोग को given है. अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है. We have to solve this problem कि हम लोग को बताना है कि हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होगा. मतलब इनडायरेक्टली हमसे पूछा गया है कि हमें x और y की वैल्यू बताइए क्या होगी. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x एंड y. ओके, सो x और y की वैल्यू अगर मुझे बतानी है तो कैसे बताऊंगा. देखो, जब भी हम लोग को इस तरह की प्रॉब्लम हो तो हम लोग को वॉल्यूम रिलेशनशिप होती है या फिर वॉल्यूम मास रिलेशनशिप होती है. हमेशा याद रखना, या तो वॉल्यूम रिलेशनशिप से होता है, यानी सबको वॉल्यूम में कन्वर्ट करो, या सबको मास में कन्वर्ट करो. ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम रिलेशनशिप, एंड वी आर डीलिंग विद द वॉल्यूम रिलेशनशिप. ओके, सो अगर हमारे पास इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो अगर हमें 1.2 लीटर दे रखा है और ये हमारे पास 44.8 लीटर बन रहा है, तो बताइए वाटर जो होगा दैट इज इन लिक्विड. ठीक है, वाटर तो लिक्विड में होता है, वो तो गैस में नहीं है, तो इसको तो हम लोग वॉल्यूम में कन्वर्ट नहीं कर सकते. 22.4 लीटर का इससे कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है, 22.4 लीटर का इससे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार इसको ट्राई करते हैं इस तरह से डील करके. ओके, लेट्स डील. देखो ये आसान तरीके से होता है. सो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को बहुत ही सिंपल तरीके से. तो अभी हमारे पास ये गिवन है क्वेश्चन में कि 11.2 लीटर जब इसका कंप्लीट कंबशन होता है द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, मतलब हमारे पास कोई 11.2 लीटर हाइड्रोकार्बन है, जब इसको हम लोग सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो हमें 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और 36 ग्राम हम लोग को क्या मिलता है, वाटर मिलता है. ठीक है, अब हमारे पास एक वॉल्यूम रिलेशनशिप, हमारे पास एक तरीका होता है जिसमें हम वॉल्यूम में सारे चीज़ों को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देते हैं, या सारी चीज़ों को हम लोग मास में ग्राम या मास में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी वेट में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास ये वॉल्यूम में गिवन है, ये वॉल्यूम में गिवन है, तो हम लोग इसको भी वॉल्यूम में ही कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, सो अगर मेरे पास 36 ग्राम वाटर गिवन है तो पता है कि 18 ग्राम जो वाटर होता है, 18 ग्राम वाटर, उसके अंदर 1 मोल होता है. तो 36 ग्राम वाटर में कितना मोल होगा, दैट विल बी 2 मोल, 2 मोल होंगे. और आपको पता है कि 1 मोल कोई भी गैस जो होती है वो ऑक्यूपाई करती है 22.4 लीटर. सो 2 मोल वाटर कितना ऑक्यूपाई करेगा गैसियस फॉर्म में, अगर हम लोग एनटीपी पर रखें तो वाटर विल ऑक्यूपाई, दैट विल बी 44.8 लीटर. ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू हियर इज दैट वी हैव द जनरल इक्वेशंस ऑफ, हमारे पास एक जनरल इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास फॉर्मूला होता है हाइड्रोकार्बन को कंप्लीटली बर्न करने का, दैट इज CxHy. जब ये रिएक्ट करेगा कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी इसके लिए, x प्लस y बाई 4 O2 चाहिए होगा, प्लस x कार्बन डाइऑक्साइड x टाइम्स दी कार्बन डाइऑक्साइड एंड y बाई 2 टाइम्स दी वाटर हम लोग को मिलेगा. तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन होती है. अब इसमें हम लोग को क्या है कि हमारे पास हमने सबको लीटर में कन्वर्ट कर लिया, 11.2 लीटर. तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर कि हम लोग सभी को किस में कन्वर्ट कर देंगे, लीटर्स में. ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सारी जितनी भी हमारे पास है, ये जैसे हमारे पास 11.2 लीटर है, ठीक है, हमारे पास 44.8 है और यहाँ पर हमारे पास है, तो हम लोग सबको क्या कर देंगे, वी विल डिवाइड इट, वी विल कंसीडर, मतलब ये हम लोग जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम दे रखा होगा ना, उसको हम लोग वन एज अ वन कंसीडर कर लेंगे, मतलब, और हम लोग इसी से सबको डिवाइड करेंगे. ये जितना भी वॉल्यूम हम लोग को गिवन होगा किसका, चाहे वॉल्यूम रिलेशनशिप में हो चाहे मास रिलेशनशिप में हो. ठीक है, सो इसमें हम लोग को पता है कि जितना भी वॉल्यूम हम लोग को गिवन है सबको आप उसी से डिवाइड कर दीजिए. तो इसको डिवाइड करोगे तो ये तो है ही इतना, इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 4, और इसको डिवाइड करेंगे आप तो यू विल गेट 4 हियर अगेन. मतलब आप 44.8 को डिवाइड करोगे 11.2 से, यू विल गेट 4, और 44.8 को 11.2 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट अगेन 4. और ये 4 क्या वैल्यू आई है, दिस इज द वैल्यू हियर. ये जो वैल्यू है ना हमारे पास स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उसकी वैल्यू आई है. मतलब दिस इज x, दिस 4 इज इक्वल्स टू x, and this y by 2 is equals to 4.
सो आपको पता है कि इफ x की जगह पर 4 है तो x की जगह पर 4 आ जाएगा, एंड इफ y by 2 इज इक्वल्स टू 4 देन इट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, यू विल गेट y इज इक्वल्स टू 8। समझ में आया? समझ में आया? सो formula of the compound will be C4H8 will be the formula of the compound C4H8। इसी तरह का एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं, फटाफट से इसको कॉपी करो। तो चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करके दिखाओ मुझे इसी बात पे, ठीक है? तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं आपको देता हूँ कि 10 ml हमारे पास कोई एक हाइड्रोकार्बन है, इस दफ़ा 10 ml कोई हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है, माई वॉइस इज ब्रेकिंग, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर इंटरनेट कनेक्शंस, अभी आ जाएगी, ओके? तो इफ आई एम सेइंग हियर दैट आई हैव अ हाइड्रोकार्बन दैट इज 10 ml, 10 ml उसका वॉल्यूम है, ठीक है? और वो रिएक्ट कर रहा है 25 ml ऑक्सीजन के साथ, 25 ml ऑक्सीजन के साथ, ओके? तो 20, आपका क्वेश्चन है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अगर 10 ml ये रिएक्ट करता है, ठीक है? 10 ml कोई हमारे पास ये हाइड्रोकार्बन है, जब ये रिएक्ट करता है 25 ml इसके साथ, तो आपको 20 ml कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। आपकी बार वाटर नहीं दिया हुआ, ठीक है? 20 ml का, जब 10 ml, मैं यहाँ पे क्वेश्चन को एडिट कर देता हूँ, मैं बता देता हूँ कि जब 10 ml कोई भी एक हाइड्रोकार्बन को आप बर्न करते हो तो वो 25 ml ऑक्सीजन लेता है, 25 ml ऑक्सीजन लेता है और 20 ml कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, 20 ml कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, 20 ml कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, ठीक है? 20 ml, वाटर नहीं बता रहा मैं, क्वेश्चन में इतनी नॉलेज कितना काफ़ी है। सो आप मुझे बताइए कि हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होगा? मैंने तुमसे बोला है कि अगर मैंने इस तरह का क्वेश्चन लिया है जिसमें हम लोग बोल रहे हैं कि 10 ml मेरे पास ये है, 25 ml ये है, और तो 20 ml हम लोग को ये मिल रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो बताइए कि हाइड्रोकार्बन क्या होगा, कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा? तो आपको मैंने बोला है सिंपल कि आप ये जो भी आपको वॉल्यूम दे रखा हो हाइड्रोकार्बन का, उसको उससे सारे वॉल्यूम को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है? उससे सारे वॉल्यूम को डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर आप जब आप डिवाइड करेंगे, सो व्हेन यू डिवाइड 10, जब आप इसको डिवाइड करेंगे यू विल गेट 2.5, ये आपके पास 2.5 आ जाएगी ये वैल्यू। जब आप 10 से 25 ml को डिवाइड करेंगे यू विल गेट 2.5, और जब इसको डिवाइड करेंगे यू विल गेट 2। सो 2 इज द कोफिशिएंट, ये वैल्यू है x की, और 2.5 इज द वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन, ये पूरे की वैल्यू जो है वो 2.5 है, ठीक है? सो अब आपको सॉल्व करना है इसको। कैसे सॉल्व करोगे? आपको गिवन है यहाँ पे कि द वैल्यू ऑफ x इज व्हेन यू डिवाइड कार्बन डाइऑक्साइड पर यहाँ पर x था और 20 ml आपको दिया हुआ था, तो आपने जब इसको 10 से डिवाइड करा यू गेट 2, तो x की वैल्यू तो 2 आ गई, और x प्लस y by 4 की जो वैल्यू है दैट इज एक्चुअली कितना है? दैट इज 2.5, पूरे की वैल्यू 2.5 है, तो y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ पर 2 रखो वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखोगे, कितना आंसर आएगा? 2 प्लस y by 4 इज इक्वल टू 2.5। सो इसको आप ले जाइए उधर, ठीक है? माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास y by 4 इज इक्वल टू 2.5 माइनस 2, तो यू विल गेट y by 4 इज इक्वल टू, कितना माइनस करोगे तो यू विल गेट 2 हेयर। जैसे ये 2 आपके पास आएगा, तो सॉरी यू विल गेट 0.5 हेयर, 0.5। सो जब आप इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, यू विल गेट एक्चुअली 2। तो y की वैल्यू आपके पास 2 है और x की वैल्यू भी 2 है, तो दैट इज C2H2, इथाइन। इथाइन इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, गॉट इट? इथाइन है हमारे पास C2H2। अभी भी समझ में आया कि नहीं आया? ऊपर से गया सर, समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? यस सर। फिर से समझो। एक बार फिर देखो हमारे पास, हम लोग के पास क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास कोई एक हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन को जब भी हम जलाते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आती है x प्लस y by 4, ठीक है? और इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब O2 प्लस विल गिव्स यू एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड, x कार्बन डाइऑक्साइड प्लस y by 2 वाटर, ये हम लोग को मिलेगा। अब आपको गिवन है कि 10 ml ये है, और जब ये रिएक्ट करता है 2.5 ml ऑक्सीजन के साथ, तो आपको 20 ml कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। आपको हाइड्रोकार्बन का नाम बताना है।
सो ये क्या है, ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होता है कि जितना भी ml आपको हाइड्रोकार्बन का गिवन हो उससे आप बाकी वाले को डिवाइड कर दीजिए। सो जैसे ही आप 10 से इसको, सॉरी दिस इज 25, दिस इज नॉट 2.5 इन द क्वेश्चन, दैट इज 25, ओके। तो जैसे ही आप इसको 25 ml को डिवाइड करेंगे 10 ml के साथ, तो 25 एंड डिवाइडेड बाई 10 यू विल गेट 2.5। और जब आप इस 20 ml को इस 10 से डिवाइड करेंगे, जो भी नंबर यहाँ पर, जो भी वॉल्यूम दे रखा होगा आपको डिवाइड करना है, तो आप जब डिवाइड करेंगे 20 को 10 से, तो यू विल गेट 20 बाई 10, व्हाट यू विल गेट 2 आ गया आपका। अब ये 2 और ये 2.5 क्या है, ये स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है किसका, ऑक्सीजन का, और 2 इज द स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि इस पूरे की वैल्यू, किसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू जो है दैट इज 2.5 और इसकी वैल्यू जो है दैट इज 2। सो आप रख सकते हैं कि x इक्वल्स टू 2 आ गया आपका, यहाँ पे रख दिया आपने, और ये x प्लस वाई बाई 2 की वैल्यू आपने 2.5 रख दी। अब x की वैल्यू जो 2 आई थी आपने उसको यहाँ पर पुट कर देंगे x की जगह पर, तो यहाँ पर 2 आ गया प्लस y बाई 4 चल ही रहा है हमारा, y बाई 4, ठीक है। अब ये जब 2 इस तरफ जाएगा माइनस होगा तो यू विल गेट 2.5 माइनस 2, यू विल गेट 0.5, ठीक है। 0.5 आया यहाँ पर और y बाई 4 आ गया, तो अब ये 4 जब उस तरफ मल्टीप्लाई करेगा यू विल गेट 0.5 एंड मल्टीप्लाइड बाई 4 यू विल गेट 2। सो y की वैल्यू भी 2 आ गई है और x की वैल्यू भी 2 आ गई, तो कंपाउंड क्या था हमारा CXHY, तो C2H2, गॉट इट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 20 ग्राम ऑफ अमोनिया, 20 ग्राम ऑफ मिक्सचर्स ऑफ, सॉरी अमोनिया बोल रहा हूँ, 20 ग्राम ऑफ अ मिक्सचर्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट इज जेंटली हीटेड, मतलब इसको आपने जेंटली हीट किया है, मतलब हल्के से, ज़्यादा तेज स्ट्रांगली हीट नहीं किया है, ठीक है। तो इससे आपको मिली है 2.24 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिली है, मतलब प्रोड्यूस हुई है एट एनटीपी, नेशनल टेम्परेचर प्रेशर। कैलकुलेट द कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर की कॉम्पोजिशन ही परसेंटेज बतानी आपको कि ये कितने परसेंट है और ये कितने परसेंट है। दोबारा समझ लो कि आपके पास 20 ग्राम जो है मिक्सचर है सोडियम कार्बोनेट का और कैल्शियम कार्बोनेट का। आपने जब इन दोनों को हीट किया तो हीट करने पर आपको कितना मिला है, 2.24 लीटर आपको क्या मिली है, कार्बन डाइऑक्साइड मिली है, प्रोड्यूस हुई है एनटीपी पर, नेशनल टेम्परेचर प्रेशर पर, ठीक है। आप मुझे बताइए कि कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर क्या होगी, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर। यहाँ पर तुम्हें एक स्पेशल ज़रूरत है इस तरह के प्रॉब्लम की कि मैं बता देता हूँ आप लोग को कि जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट के मिक्सचर को हीट करेंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन से होती है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 व्हेन हीटेड इट विल गिव्स यू CaO प्लस CO2। सोडियम कार्बोनेट डू नॉट डिकम्पोज, सोडियम कार्बोनेट को हीट भी करोगे तो वो सोडियम कार्बोनेट ही रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करता। तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि सोडियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस हुई, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है वो किससे हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट के जलने से हुई है। अब आपको पता है कि जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, ठीक है, सो आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, और इससे जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आप 1 मोल यानी कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलिकुलर वेट होता है वो कितना होता है, 100 ग्राम। तो जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, ओके, और उसको आप, तो उससे आपको 56 ग्राम ये मिलेगा और 44 ग्राम ये मिलेगा। गॉट इट, गॉट इट, समझ में आया कि जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ना, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर बैलेंस्ड है, तो जब आप 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो आपको 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और प्लस 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। तो अभी आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड मिली है वो कितनी मिली है, दैट इज 2.4 लीटर, 2.24 लीटर आपको मिली है, ठीक है। सो आप मुझे बताइए बेटा, जरा ध्यान से सोचिएगा, आपको इतनी मिली है कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको पता है कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितना वॉल्यूम होता है, 22.4 लीटर। तो कितने वॉल्यूम, कितने मोल में 2.4 मिलेगा। सो आपको क्या निकालना है, मोल निकालना है, मोल।
सो आप इसको ऐसे लिखिए 22.4 लीटर में मिलता है 1 मोल, तो 1 लीटर में कितना मिलेगा, दैट विल बी 1/22.4 मोल। सो अब यहाँ पर ये 1 लीटर हो गया, लेकिन आपको कितना चाहिए 2.24, तो 2.24 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो घर भी मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2.4 इंटू 1/22.4/2.4। जब आप इसको करेंगे so you will find that ये exactly 1/10 टाइम्स कट जाएगा, ओके, तो you will get 0.1 मोल, 0.1 मोल। यानी आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, इट इज ओनली 0.1 मोल। सो 0.1 मोल में 1 मोल में होती है 1 मोल में जो यूज होता है या 1 मोल में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो होती है 44 ग्राम। 1 मोल 44 ग्राम के बराबर है। तो आप मुझे बताइए जल्दी से फटाफट कि 0.1 मोल में कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलेगी, फटाफट से बताइए। 0.1 मोल का मतलब कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होगा, फटाफट से कैलकुलेट करिए, बताइए। तो अभी हम लोग यहाँ पर 0.1 को क्या बोलते हैं 44 ग्राम में हमने डिवाइड कर दिया। हाँ बस 10 से। क्या आपको पता है कि 1 मोल में मिलता है 44 ग्राम, तो 0.1 मोल करने के लिए इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको भी 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 0.1 मोल में 4.4 ग्राम्स, तो 4.4 ग्राम्स, तो ये मिल रहा है आपको 4.4 ग्राम्स। तो सभी को आप 10 से डिवाइड कीजिए। इसको आपने 4.4 ग्राम लाने के लिए क्या किया, 10 से डिवाइड किया, तो इसको भी 10 से डिवाइड कीजिए, इसको भी 10 से डिवाइड कीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। जब रिएक्ट करेगा तो आपको 5.6 ग्राम क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, और प्लस 4.4 ग्राम्स आपको ये मिलेगा। अब कंपोजिशन मिक्सचर पूछ रहा है कि कंपोजिशन मिक्सचर, तो आप मुझे बताइए कि अगर इसमें हम लोगों ने पता लगा लिया कि भाई 10 ग्राम कार्बन जब कैल्शियम कार्बोनेट जला होगा तो उसी से 2.24 लीटर आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिली है, क्योंकि इससे तो मिलती नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये तो डिकम्पोज ही नहीं होता, इवन रेड हॉट होने पे भी डिकम्पोज नहीं होता है, वो तो जेंटली हीट किया गया है, ठीक है। तो आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड मिली है वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिली है, आपने कैल्शियम कार्बोनेट की वैल्यू निकाली, दैट इज 10 ग्राम। मिक्सचर कितना था 20 ग्राम, तो बताइए कंपोजिशन क्या होगी, कौन कौन कितने परसेंट होगा, बताइए। सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर 10 ग्राम हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है तो 10 ग्राम ही हमारे पास क्या होगा, 20 ग्राम टोटल मिक्सचर है तो 10 ग्राम ये होगा, तो 50% ये हो गया, 50% ये हो गया, सिंपल। चलो आगे चलते हैं। बोर हो गए इस तरह के क्वेश्चन से हम लोग ना, एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है, बाद में प्रैक्टिस के लिए छोड़ देते हैं वाले क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट पर। जो क्वेश्चन बचे हैं वो लोग हम लोग कर लेंगे किसमें, व्हेन वी विल बी स्टडिंग दी, जब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, मतलब प्रैक्टिस रिवीजन कर रहे होंगे तब हम लोग पढ़ लेंगे, ओके। चलो अभी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से समझना, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म्स लिमिटिंग रिएजेंट? लिमिट मतलब कोई चीज़ लिमिटेड अमाउंट में, कम अमाउंट में, ठीक है, और रिएजेंट मतलब कोई भी रिएक्टेंट का कोई भी पार्ट हो सकता है, ठीक है। रिएजेंट मतलब जो रिएक्टिंग स्पीशीज है उसमें से, उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। सिंपल वे में मैं समझाना चाहता हूँ कि होता क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है क्या। जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी कंपाउंड या कोई भी चीज़ हम लोग रिएक्शन करा रहे होते हैं, तो हमेशा आपने ये पढ़ा होगा 9th क्लास में कि व्हेनेवर अ कंपाउंड इज बीइंग रिएक्टेंट, या जब भी कोई कंपाउंड आपस में, मतलब दो एलिमेंट या कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं, तो उनका फिक्स कंपोजिशन बाय मास होता है। ऐसे नहीं कोई कितना भी रिएक्ट करके बना लेगा, ये कोई फिजिकल सॉल्यूशन नहीं हो रहा है जिसमें आपने जैसे सपोज को 1 चम्मच चीनी ली पानी के अंदर तो वो भी घुल गई, 2 चम्मच डाली तब भी घुल गई, ऐसा नहीं होता। केमिकल कंपाउंड में जब केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स रेशियो बाय मास से जुड़ करके बने होते हैं, ऐसे नहीं कि कितना भी बन जाएंगे, ठीक है, ये आपको समझना होगा। कितना भी नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड की रेशियो में जब कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहे होते हैं हम लोग, तो C + O2 विल गिव्स यू CO2, और इसका एक सिंपल रेशियो कि 12 ग्राम कार्बन जब रिएक्ट करेगा 32 के साथ तो आपको 44 मिलेगा। इसको सिंपलेस्ट रेशियो में ला सकते हो आप, 3 ग्राम जब रिएक्ट करेगा 8 के साथ तो आपको 11 ग्राम मिलेगा, मतलब 3:8 का सिंपलेस्ट रेशियो। फॉर एवरी 3 ग्राम कार्बन आपको 8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अगर आपके पास सपोज 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए,
अगर सपोज करो आपके पास ऐसा होता है कि आपके पास ये 4 ग्राम या 5 ग्राम आपने ले लिया और ये आपके पास 80 ग्राम है, तो ऐसा नहीं कि 13 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड अभी भी 11 ग्राम ही बनेगी। और क्यों बनेगी? क्योंकि 8 ग्राम सिर्फ 3 ग्राम कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, बाकी कार्बन के साथ रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन खत्म, क्योंकि वो तो 3 ग्राम कार्बन के साथ रिएक्ट कर गई। अब ऑक्सीजन है नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन तो है नहीं, वो तो 3 ग्राम कार्बन के साथ रिएक्ट कर गई, इसमें से 3 ग्राम, तो बाकी का 2 ग्राम कार्बन बचा रह जाएगा अनलेफ्ट। तो इसमें जो बना है वो जो कम अमाउंट में बना है, मतलब जो कम अमाउंट में है, उसी को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। जैसे 8 ग्राम जो है हमारे पास, वो गैस हमारे पास ऑक्सीजन गैस कम पड़ रही, तो इसी को हमने बोला लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। अब इसको कैसे समझेंगे हम लोग, जरा इसको समझो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने वाटर को मैंने कराया ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो मेरे पास वाटर बना है, ठीक है। अब सपोज करो मेरे पास, इसका सिंपलिफिकेशन निकालूंगा कि मेरे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो आपको 36 ग्राम, सॉरी इसको मैं बैलेंस कर लेता हूँ पहले, तो 4 ग्राम चाहिए होगा, सॉरी, ठीक है। सो बैलेंस करूंगा तो इसको 4 हाइड्रोजन होगा ना, तो 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा 32 के साथ, तो 36 ग्राम आपको मिलेगा। इसका सिंपलेस्ट रेशियो अगर करूंगा तो मैं आएगा 1:8:9, मतलब सबको 4 से डिवाइड कर दिया, तो मतलब हर 1 ग्राम के साथ, हर 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 8 ग्राम हमको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो रिएक्ट तब आपको 9 ग्राम वाटर मिलेगा। अब सपोज करो आप मार्केट गए, या आप ऐसे भी केजी में भी ला सकते हो, ग्राम में नहीं ला, तो इसका सिंपल रेशियो केजी में भी वही रहेगा कि 1 केजी के साथ 8 केजी आपको ये मिलेगा, तो 9 केजी वाटर मिलेगा। अब आप मार्केट गए, आप मार्केट से गए, मार्केट से जाने के लिए आपने क्या किया? 2 केजी हाइड्रोजन लेके आ गए और आप 8 केजी आप ऑक्सीजन लेके आ गए, दोनों को रिएक्ट कराया, सोच रहा वाटर 10 केजी बन जाएगा, तो 10 केजी वाटर नहीं बनेगा, 9 केजी ही बनेगा, क्योंकि 8 केजी ऑक्सीजन के साथ 1 केजी हाइड्रोजन चाहिए ही चाहिए। 8 केजी ऑक्सीजन के साथ 1 केजी हाइड्रोजन चाहिए। बाकी का 1 केजी जो हाइड्रोजन बचा है, वो तो उसके लिए ऑक्सीजन बची नहीं, खत्म हो गई, कंज्यूम हो गई, तो अब 1 केजी हाइड्रोजन गैस बची रह जाएगी। तो इसमें ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ऑक्सीजन इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। लेकिन अगर मैं ऐसे कर लूँ, उल्टा कर दूँ, इसका कुछ ऐसा कर दूँ कि सपोज कीजिए, अभी मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगा आपको। सपोज कीजिए कि हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशंस है जिसमें हमने आपकी बार हम लोगों ने 1 केजी हम लोगों ने क्या लिया है? हाइड्रोजन गैस ले ली है, और सपोज करो ऑक्सीजन गैस हमने 10 केजी ले ली है, 10 केजी हमने ऑक्सीजन गैस ले लिया। अब हम सोच रहे हैं 11 केजी वाटर बन जाएगा, तो नहीं बनेगा, 11 केजी वाटर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 1 केजी के साथ 8 केजी ऑक्सीजन, 1 केजी हाइड्रोजन के साथ 1 केजी हाइड्रोजन के साथ 8 केजी हमारे पास क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन चाहिए होती है। 8 केजी ऑक्सीजन इज बीइंग रिक्वायर्ड। सो अगर 8 केजी ऑक्सीजन हमें चाहिए ही चाहिए, 1 केजी हाइड्रोजन के साथ हमें 8 केजी ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। तो उसके बाद जो हमारे पास 2 केजी बचेगा, मतलब 1 केजी के साथ 8 तो रिएक्ट कर गया इसमें, तो 2 जो बचा उसके लिए हाइड्रोजन खत्म, हाइड्रोजन है नहीं, क्योंकि वो तो 1 केजी के साथ रिएक्ट कर गई, मतलब इसमें से 8 के साथ रिएक्ट कर गई, पूरी 1 केजी हाइड्रोजन इसमें से 8 के साथ रिएक्ट कर गई, तो बाकी का बचा हुआ हमारे पास है ही नहीं। और जब बाकी का बचा हुआ हमारे पास नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये इसमें इस दफा हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। जो पहले खत्म हो जाएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। इसको तुम और आसानी से समझ सकते हो। चलो समझते हैं इसको। आप मार्केट में जाते हैं, आपके पास सारी चीजें हैं साइकिल बनाने के लिए, बस आपके पास सीट और व्हील नहीं है। यू डोंट हैव द सीट एंड द व्हील, यू डोंट हैव द सीट एंड द व्हील। ओके, सो आप साइकिल मार्केट में गए, आप 10 व्हील लेके आए और आप 10 सीट लेके आए, 10 सीट लेके आए और आप 12 व्हील लेके आए। व्हील कितनी कंप्लीट साइकिल बनाओगे? कितनी कंप्लीट साइकिल बनेगी? 10 सीट और बाकी सारा सामान अवेलेबल है, बस सीट और व्हील नहीं थी। आप मार्केट में गए, आप 10 सीट लेके आए और 12 व्हील, कितनी साइकिल बनेगी? 6। You will get to 6 wheels. Okay. So यहाँ पर आपका 4 सीट हमारे पास रिमेनिंग, क्योंकि आपके पास बाकी के
बाकी के सीट लगाने के लिए आपके पास व्हील है ही नहीं, अभी ध्यान देना इस बात पर। तो आपके अकॉर्डिंग 6 बनेगी, 6, ओके, 6 साइकिल, 6 कंप्लीट साइकिल। श्योर हो इस बात में, कोई डाउट नहीं है? ओके, अब की बार मैंने क्या किया, अब की बार मैंने 5 सीट ली हैं, 5 सीट ली हैं और मैंने 12 व्हील्स लिए हैं, 12 व्हील्स लिए हैं। कितनी साइकिल बनेगी? कितनी साइकिल बनेगी? सोच के बता। 2 व्हील बच जाएंगे। सो इस बार लिमिटिंग में कौन हो गया? सी। इस बार पहले लिमिटिंग में कौन थे? व्हील। तो 5 साइकिल हमारे पास बनी। अब आपने एक चीज नोटिस की, जो लिमिटिंग अमाउंट में है ना, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बन रहा है। पहले आपके पास व्हील लिमिटिंग में थे, तो उसके हिसाब से साइकिल बनी 6, ठीक है। जो ज्यादा अमाउंट में उसके हिसाब से नहीं बनना, जो लिमिटिंग अमाउंट में उसके हिसाब से बनना है प्रोडक्ट। इस बार सीट अगर लिमिटिंग थी, 5 सीट थी, 2 व्हील हमारे पास एक्स्ट्रा रह गए, 10 इसमें से यूज हो गए। तो इस बार आपने सीट जो बनाई, यानी साइकिल जो बनाई, वो 5 बनाई, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करी? सीट के ऊपर, नंबर ऑफ सीट के ऊपर। तो द लिमिटिंग अमाउंट सब्सटेंस जो हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में होता है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनता है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनता है। गॉट इट? गॉट इट। अब इसको हम लोग प्रेडिक्ट कैसे करेंगे, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन सा नहीं है? चलो देखते हैं हम लोग। ये हमारे पास N2 है, ये हमारे पास 3H2 है। N2 जब रिएक्ट करेगा, N2 व्हेन रिएक्ट विद 3H2 इट विल गिव्स यू 2NH3, अमोनिया दे देगा, ओके, 2NH3 आपको दे देगा। अब आप मुझे बताइए इसका N2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? फटाफट जल्दी बताओ, N2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? N2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? नाइट्रोजन का से इस इक्वेशन के हिसाब से, ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, इस इक्वेशन के हिसाब से अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस रिएक्ट करेगी, हाइड्रोजन के टोटल 6 मॉलिक्यूल्स हैं, 6 एटम्स है सॉरी, और 6 एटम्स, एक एटम का वेट कितना होता है? 1, तो 6 का कितना होगा? 6 ग्राम, ओके, 6 ग्राम। तो अमोनिया के एक मॉलिक्यूल का वेट होता है 17, 14 इसका और प्लस 3 मिला करके 17, तो 2 है यहाँ पर, तो हमें 17 टू द 34 मिल गया। इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, सो यू विल गेट 14:3:3:3:17, का रेशो है, 14:3:17, ओके। सो हमारे पास ये कि फॉर 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस जब रिएक्ट करेगी 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, तो आपको कितना मिलेगा? 17 ग्राम हाइड्रोजन अमोनिया गैस मिलेगी। गॉट इट? जब 14 ग्राम, गॉट इट। अब आपको मैं रेंडमली दे देता हूँ कि आपके पास 25 आपने ये ले ली है, ठीक है, और ये आपने ले ली है, सपोज कीजिए कि आपने ये 5 ले ली है, 5, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और कितने ग्राम अमोनिया बनेगी, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और कितने ग्राम अमोनिया बनेगी, आपको बताना है। तो इसके लिए सिंपल, आपको पहले लिमिटिंग रिएजेंट पता करना होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। तो इसके लिए सिंपल सी ट्रिक है, आप इधर को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। लेकिन एक बात याद रखना, पहली बात पहले बता देता हूं, मोल दे रखा होगा तो मोल से करोगे, और अगर वेट दे रखा है तो वेट से करोगे। मतलब यहाँ पर मैंने वेट लिया है, तो यहाँ पर भी मेरे को वेट दिया है, तो मैंने नीचे भी 25 ग्राम वेट में है और मेरा 5 ग्राम ये भी वेट में है। अगर ऊपर मोल होता तो मेरा 1 होता, फिर 3 होता, तो नीचे भी 1 और वही पैसे होता। मोल है तो मोल में, और ग्राम है तो ग्राम में, ठीक है, समझ में आया? ऐसे नहीं आधे को तुमने मोल में ले लिया, आधे को ग्राम में ले लिया, ऐसा नहीं होगा। या तो सबको मोल में लो या सबको ग्राम्स में लो। गॉट इट? अरे गॉट इट, ओके। अभी समझा देता हूँ क्या मैं कहना चाह रहा था, एक बार फिर से। तो आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे से ऊपर को, तो नीचे से ऊपर को मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आएगा यहाँ पर?
तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 70 मिला, यहाँ पर 75 मिला, तो जो आपको लिमिटेड अमाउंट मतलब जो ज़्यादा आया वही लिमिटेड अमाउंट में। तो इस केस में जब आप 25 ग्राम नाइट्रोजन गैस को रिएक्ट कराओगे 5 ग्राम नाइट्रोजन गैस के साथ, 5 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ, उस केस में आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, उस केस में ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब आप रिएक्ट कराओगे तो जो चीज़ ज़्यादा प्रोडक्ट आएगी वही लिमिटिंग रिएजेंट है। और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिमिटिंग रिएजेंट में है, यानी कि 5 ग्राम हाइड्रोजन पहले कंज्यूम हो जाएगी, 5 ग्राम हाइड्रोजन पहले कंज्यूम हो जाएगी। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए अमोनिया गैस कितनी बनेगी। यू हैव टू फाइंड कि अमोनिया गैस कितनी बनेगी। तो बताइए अमोनिया गैस कितनी बनेगी। तो मैंने बताया था कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनता है। तो हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट कितना है, हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो है हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस के हिसाब से आप बता दीजिए, अगर 5 ग्राम हाइड्रोजन है आपके पास और आपके पास नाइट्रोजन सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है, वो कम नहीं पड़ रहा है, तो आप बताइए कितना बनेगा। तो आपको पता है कि जब आपको पता है कि जब 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो उससे 17 ग्राम अमोनिया बनता है। तो 1 ग्राम जब रिएक्ट करेगा तो 17/3 ग्राम बनेगा। ओके, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपके पास 5 ग्राम है, 5 ग्राम से 17/3 × 5 बनेगा। जो भी आंसर आएगा उसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर बनेगा। गॉट इट। सिंपलेस्ट रेशो में 14:3 था ना, कि 14 ग्राम रिएक्ट करेगा 3 ग्राम के साथ, तब 17 बन रहा था। ओके, चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। अगली क्लास में